Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Noor Sabah Idrisi from Digital Moody, and today's class is going to be about how you can generate passive income with the help of blogging website. If you are a student or maybe you want to be generate a side income and maybe you are the employee in some corporate sector, so you can generate a passive income with the help of blogging website. So this class is going to be about how you can create your own blogging website, the which platform from the which platforms you can approve your website for the ads and lots of things. Okay, so the first thing is the platform to create a blogging website. Okay, so I have mentioned 4 platforms. With the help of them you can create your own blogging website. The first one is wordpress.com. So wordpress.com, if I'm talking about the wordpress.com, so wordpress.com is going to be so basic and limited for the customization if you are dealing with the free version of wordpress.com. Okay, the second one is Blogger. So blogger is blog. If I'm talking about the Blogger is easy to use, and you can integrate your Blogger with the Google AdSense as well. And the third one is Medium. So if I'm talking about Medium is good for the reach. If you are working on Medium, then you can rank your website more within 15 to 20 days if you are regularly posting on Medium and create backlinks with the help of Medium. But the Medium, if I'm talking about the Medium in terms of blogging website, so it has a good reach but limited control over a monetization. Okay, the fourth one is wordpress.org. So I'm not mentioned yet difference between the wordpress.com and the wordpress.org, but now I'm just telling but now I'm just going to tell you about the wordpress.org. So wordpress.org is the most popular content management system. The 43% of websites create on wordpress.org. You just have to be purchase your domain and hosting, and you can install your WordPress in your hosting account, and you are good to go with your blogging website, business website, and any other website. Okay, so and the fifth one is the Wix and the Squarespace. Okay, so if I'm talking about the Wix and Squarespace, so Wix is the drag and drop website builder, and Squarespace is also although I have not worked on Wix ever and Squarespace as well, because maybe I'm just maybe मैंने इन दोनों के नाम ही आज ही सुने होंगे, क्योंकि मैं रिसर्च कर रही थी कि मुझे ये क्लास जनरेट करनी है. सो आई एम नॉट वर्किंग ऑन आई हैव नॉट वर्कड ऑन द विक्स एंड स्क्वायरस्पेस एवर इन माई लाइफ, बट यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर है और ये गुड फॉर द बिगनर्स. ठीक है, बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है. अगर आप विक्स सीख लेते हैं तो इट्स अ गुड स्टार्ट. और मे बी द 7 ईयर अगो मैंने भी शायद विक्स से ही स्टार्ट करा था, बट मेरा कुछ बना नहीं होगा तो मुझे पता नहीं है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बट एंड लिमिटेड फॉर द स्केलिंग, मगर स्केलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है. आफ्टर दैट तो मैंने आपको यहाँ पे 4 से ज़्यादा, मतलब मैंने आपको यहाँ पे 5 ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताए हैं जहाँ पर अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट को जनरेट कर सकते हैं या अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ wordpress.com, द सेकेंड वन इज़ Wix, द थर्ड वन इज़ अ ब्लॉगर, द फोर्थ वन इज़ मीडियम, एंड द फिफ्थ वन इज़ blogger.wordpress.org. सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट और सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो wordpress.org है, बिकॉज वो आपको भी पता है कि वहाँ पे 43 या फिर आप गूगल के ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स देखते हैं 70% वेबसाइट जो होती हैं वो wordpress.org के ऊपर बनी होती हैं. नॉर्मली आपको खाली अपना डोमेन और होस्टिंग लेना होता है, उसके अंदर आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो. सो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको wordpress.org के ऊपर काम करना है या फिर ब्लॉगर के ऊपर वर्क करना है या फिर मीडियम के ऊपर ब्लॉग करना है. मीडियम पे बेसिकली आप बिल्कुल फ्री में काम कर सकते हैं वहाँ पे नॉर्मली, लेकिन आपको पता है मोनेटाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको
बहुत कम चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और वर्डप्रेस और डॉट और के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको ऑब्वियस सी बात है डोमेन होस्टिंग मिलेगी। डोमेन होस्टिंग काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस के ऊपर मिल जाती है। ज़रूरी नहीं आप बड़ी कंपनीज के साथ ही डील करें, लाइक यू आर डीलिंग विद गो डैडी या फिर ब्लू होस्ट। आप ऐसी भी कंपनी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो और काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस के ऊपर आपको होस्टिंग अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। फ्री के चक्कर में रहेंगे ना तो आपको एक चीज़ सीखने में 3 से 4 साल लगेगा, जो चीज़ आप 3 से 2 महीने के अंदर सीख सकते हैं। जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू बी इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, जिस वजह से आपको इतना टाइम लग गया चीज़ों को सीखने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि बेसिकली एक ब्लॉगिंग वेबसाइट आप किस किस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बी इफ़ यू वांट टू बी लर्न अबाउट द हाउ टू डेवलप ब्लॉगिंग वेबसाइट, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके ब्लॉगिंग वेबसाइट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगी, ठीक है। वो उसके ऊपर आप जाएंगे, सिर्फ 2 क्लासेस उसके ऊपर हैं। द फर्स्ट वन इज अबाउट दी हाउ व्हाट इज अ ब्लॉग, टाइप ऑफ ब्लॉग्स एंड सम थ्योरी। द सेकंड वन इज फुल्ली प्रैक्टिकली, जहाँ पे मैंने प्रॉपरली आप लोग को सिखाया है कि किस तरीके से आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट को जनरेट कर सकते हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे लिखा है कि टाइप ऑफ ब्लॉग्स। तो टाइप ऑफ ब्लॉग्स मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली कितने कितने टाइप के ब्लॉग्स होते हैं। और ब्लॉग लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस नीश के अंदर इंटरेस्ट है, और उस नीश के इंटरेस्ट होने के बाद भी आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी एजुकेशन है, कितनी नॉलेज है। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं अपनी इंस्टीट्यूट रन करती हूँ और मैं यूट्यूब पे स्टूडेंट्स को एजुकेट करती हूँ, और मैं क्लाइंट्स भी हंट कर रही होती हूँ, ठीक है। मतलब मैं काफ़ी सारे काम कर रही होती हूँ, लेकिन इस वजह से क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, और खाली इंटरेस्ट नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में, मुझे अच्छी खासी नॉलेज है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई। ओके, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको पर्सनल ब्लॉग मिल जाएगा। तो पर्सनल ब्लॉग में आपको देखो आप अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी स्टोरीज, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको ब्लॉगिंग की ही बात करनी हो, इफ़ यू वांट टू बी एक्सप्लोर योर लाइफ स्टाइल, तो आप ट्रैवलिंग के ऊपर वर्क कर सकते हैं। कि जैसे कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री या सिटी में जाती हूँ तो वहाँ की क्या स्पेशलिटी है, किस तरीके का फूड मिलता है, किस तरीके के मॉन्यूमेंट्स हैं, किस तरीके का कल्चर है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपनी ब्लॉग्स, अपनी स्टोरीज के थ्रू यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका नीश ब्लॉग आ जाता है, फोकस ऑन पर्टिकुलर एरिया, एक बहुत पर्टिकुलर, ये बहुत छोटी कैटेगरी है, नीश, माइक्रो नीश के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं अगर नीश ब्लॉगिंग की बात करें तो। उसके बाद यहाँ पर एफिलिएट ब्लॉग्स आ जाते हैं। तो एफिलिएट ब्लॉग्स में सबको ही पता है कि उसमें आप प्रोडक्ट के थ्रू जो भी ट्रैफिक होता है वो, और दूसरा आपका जो प्रोडक्ट के थ्रू जो भी आपकी लाइक कमीशन जो जनरेट होता है वो उसके थ्रू आप अर्न कर रहे होते हो। उसके बाद यहाँ पे आप न्यूज़ एंड ट्रेंड ब्लॉग्स भी राइट कर सकते हैं, एजुकेशनल हाउ टू ब्लॉग को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, एंड देन बिजनेस ब्लॉग। तो ये कुछ टाइप हैं जिस तरीके से आप अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है। मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन योर ओन लाइफ एंड यू वॉन्ट टू बी एक्सप्लोर एंड यू वॉन्ट टू बी दैट कि लोग आपको जाने आपके लाइफ स्टाइल से या फिर किसी भी चीज़ से, तो आप पर्सनल ब्लॉग्स के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नीश के ऊपर काफ़ी नॉलेज है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, या मे बी कोडिंग है, या फिर अगर आपको हेल्थ के बारे में जानना है या आपको स्किन केयर के बारे में लिखना है, और इफ़ यू हैव अ गुड नॉलेज, तो आप उसके साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स लिख दिए हैं ब्लॉग्स के, कि इस तरीके के ब्लॉग्स होते हैं जो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, या आप उस चीज़ को लेकर कितने सीरियस हैं, आपको उस चीज़ के या उस पर्टिकुलर फील्ड में कितनी नॉलेज है, वो चीज़ भी डिपेंड करती है। क्योंकि मेरे आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने सिमेंटिक एसईओ और EE80 मॉडल के बारे में पढ़ाया है। जब से कोर अपडेट आई है उसके बाद EE80 मॉडल और सिमेंटिक एसईओ के बगैर गुजारा करना तो इज़ वेरी इम्पॉसिबल, और इट्स गुड कि आप अपने कंटेंट के अंदर ट्रस्ट दिखाएं, एक्सपर्टीज़ दिखाएं, एक्सपीरियंस दिखाएं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पर आप टाइप ऑफ ब्लॉग्स भी देख सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने लिखा है कि हाउ यू कैन फाइंड योर नीश। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द नीश, के नीश क्या होती है, तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को हम नीश कहते हैं। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करती हूँ,
आता तो ये टेक्नोलॉजी में ही है, लेकिन ये पर्टिकुलर एक नीश है, एक कैटेगरी है, ठीक है। तो उस तरीके से हम उसको नीश कहते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि नीश आपकी कौन सी नीश है, तो आप उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप उसको देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको पैशन और आपका नॉलेज होना चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर नीश के अंदर। उसके बाद आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं डिमांड। जैसे कि इंश्योरेंस, पीपल आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर इट। अगर आप किसी नीश के अंदर, जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लिखती हूँ, तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि वाकई में यूजर्स, कस्टमर्स, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़ इस चीज़ के बारे में सर्च करते हैं। बाकी में लोग सर्च करते हैं व्हाट इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग एंड लाइक डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू। तो मुझे अपनी पूरी मार्केटिंग को रिसर्च करना पड़ेगा कि कितनी सर्च वॉल्यूम है, कितने लोग इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं। उसके बाद आप हमें क्या कर सकते हैं, कंपटीशन चेक कर सकते हैं, अपने कंपटीशन को प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं, अपने 4-5 कॉम्पिटिटर को उठा सकते हैं और उनको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ब्लॉगिंग की भी बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सबके ही ब्लॉग्स कॉपी पेस्ट कर लें। आपने 5 उठा लिया, एक टॉपिक उठा लिया, उस टॉपिक से रिलेटेड आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक क्वेरी कर ली। जैसे कि मैं यहाँ पर स्किन केयर से रिलेटेड मैंने यहाँ पर एक क्वेरी करी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नॉर्मली स्किन केयर, तो सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। अगर मैं यहाँ पे स्किन केयर इन नाइट और स्किन केयर फॉर डे या फिर मे बी फेयर स्किन, डार्क स्किन, इस तरीके से अगर मैं करती तो यहाँ पे मुझे पहले प्रोडक्ट नहीं, मुझे यहाँ पे ब्लॉग्स ही दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वीडियोज़ आ गई हैं एंड देन यहाँ पर देखो स्किन केयर बेसिक्स। तो यहाँ पर मैं काम कर लेती हूँ स्किन केयर, यहाँ पर मैं स्किन केयर रूटीन कर लेती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। सो मे बी यहाँ पे मुझे फिर ब्लॉग्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले देखो, अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिखाई दिया, तो आपको ये भी चीज़ समझ में आनी चाहिए, कीवर्ड इंटेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 लेकर आऊँगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है व्हाट ऑर्डर शुड फॉलो फॉर माई स्किन केयर रूटीन। तो पहला आपका कॉम्पिटिटर जो ये आ गया, इस कीवर्ड के ऊपर ये पहला बंदा है, इसकी जो पहली वेबसाइट है वो रैंक कर रही है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा ये हो जाएगा, उसके बाद तीसरा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा आपका ये हो जाएगा। आपने अपने चारों के चारों कॉम्पिटिटर को खोलना है और देखना है कि इस बंदे ने किस किस तरह की सब हेडिंग्स बनाई हैं, किस तरह की मेन हेडिंग्स बनाई हैं, कितने पैराग्राफ इस्तेमाल करे हैं, किस तरह के FAQs इस्तेमाल करे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को आपको सही तरीके से एनालाइज करना है। हर चारों कॉम्पिटिटर या 5 कॉम्पिटिटर या जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके हिसाब से आपको अपनी सब हेडिंग बनानी है, हेडिंग्स बनानी है, पैराग्राफ बनाना है, FAQ बनाना है, इमेजेस बनानी है। सो बेसिकली इससे क्या होगा, तो आपका जो ब्लॉग बनेगा वो बिल्कुल यूनिक बनेगा। क्योंकि हो सकता है कि पहले वाले ने जितनी चीज़ें कवर अप करी हैं वो दूसरे ने नहीं करी हूँ, जो दूसरे ने करी हैं वो पहले नहीं करी हूँ, तीसरे ने नहीं करी हूँ, चौथे ने नहीं करी हूँ। तो आपने चारों को उठा लिया, आपने जो भी उनके हाई पॉइंट्स हैं उनको भी नोटिस कर लिया, उनको भी उठा के रख लिया, और जो उनके लो पॉइंट्स हैं उनको भी अपने ब्लॉग के अंदर कवर अप कर दिया, और जो आपको आता है वो भी आपने कवर अप कर दिया। तो आप ये समझ रहे हैं, तो आपका जो ब्लॉग बनेगा या आप जो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपने ब्लॉग्स को लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू बी लाइक, आप इस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप मोनेटाइजेशन पोटेंशियल देख सकते हैं। जैसे कि अगर मोनेटाइजेशन पोटेंशियल की बात करी जाए तो नीश लाइक फाइनेंस, टेक, हेल्थ, एजुकेशन एंड मार्केटिंग यूजली पे हायर। इस तरह की जो नीश होती हैं, जैसे कि आपकी टेक है, आपका हेल्थ है, आपका मार्केटिंग है, आपकी एजुकेशन है, आपका फाइनेंस है, ये जो कुछ ऐसी नीश हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पे करती हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आपको एजुकेशन में जाना है या आपको किसी भी चीज़ में जाना है। बेसिकली ये मुझे नहीं पता था अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने 2 टूल्स बताए हैं, तो जहाँ से आप अपने नीश को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो गूगल ट्रेंड है, और जो दूसरा है वो है आपका answerthepublic.com। तो बेसिकली मैं यहाँ पे गूगल ट्रेंड को कॉपी कर लेती हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर लाकर ना मैं नॉर्मली Ctrl+V और मैं एंटर कर दूंगी। तो बेसिकली गूगल का ही एक टूल है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे लेटेस्ट क्या चल रहा है, ठीक है, या फिर जिस नीश के अंदर मैं लिखना चाह रही हूँ उस चीज़ का कोई सर्चेज है नहीं है, उसका कॉम्पिटिशन कितना है, क्या नहीं है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे गूगल ट्रेंड के ऊपर आप आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना इस तरह से कोई कीवर्ड डाल के उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ पर अभी बेसिकली अभी बफर हो रहा है, इसको मैं बफर होने देती हूँ एंड देन फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
तो यहाँ पे मैं एक्सप्लोर को मैंने क्लिक कर लिया तो वो एक्सप्लोर जो है वो सर्च हो चुका है। अगर मैं यहाँ ट्रेंडिंग ऊपर चली जाऊँगी तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे जाएगा कि क्या चीज़ अभी 24 घंटे के अंदर ट्रेंड कर रही है, तो मैं वही ट्रेंडिंग टॉपिक उठा के लगा सकते हो। अगर आप न्यूज़ ब्लॉग्स के अंदर जाते हैं तो बेसिकली आप फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं जो ट्रेंडिंग चल रहा हो, ठीक है। जैसे कि कुछ भी ट्रेंडिंग हो सकता है, वो चीज़ आप यहाँ पे उठाकर यहाँ पे मतलब उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। सो बेसिकली जो वेबसाइट है काफ़ी स्लो चल रही है। मे बी आप लोग को गूगल ट्रेंड के बारे में समझ में आया होगा कि गूगल ट्रेंड जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। ये गूगल का ही एक टूल है जो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बताना चाहता है, जो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बताता है। और मे बी सम टाइम जब इनकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी चलेगी तो मैं प्रॉपरली गूगल ट्रेंड के ऊपर एक क्लास जनरेट कर दूंगी। ओके, सो नाउ और दूसरा जो टॉपिक है वो है answerthepublic.com। तो answerthepublic.com बेसिकली वहाँ पर आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। और लेकिन वहाँ पर बेसिकली और भी टूल्स हैं जैसे कि एhref है, SEMrush है, लेकिन वो पर्टिकुलरली कीवर्ड रिसर्च और कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, नीश फाइंड आउट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे होते। इसलिए मैंने खाली 2 टूल्स को ही चूज़ करा, गूगल ट्रेंड और answerthepublic.com। तो answerthepublic.com में बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी एक कीवर्ड डालेंगे और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन वाले पैराग्राफ्स में कीवर्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉग्स को लिख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर जो होती हैं वो आपकी लाइक क्रिएट हो जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस तरीके से आपके जो हैं आपके जो मतलब लाइक कीवर्ड्स होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं। तो आप इन 2 टूल्स के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बी वर्क विद टूल्स। और आप जब प्रॉपरली वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली बात है चीज़ें प्रॉपरली जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि प्लेटफॉर्म विच अप्रूव्स एड्स ऑन ब्लॉगिंग वेबसाइट। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग किस लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि आप किस किस जगह से अपने एडसेंस को अप्रूव करा सकते हैं, ठीक है। वैसे ये गूगल एडसेंस का तो आपने नाम सुना ही होगा और वो ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपने एड्स को अप्रूव करा सकते हैं और गूगल एडसेंस से ज़्यादा कमा सकते हैं। सो यहाँ पे भी मैं खाली प्लेटफॉर्म्स के नाम आपको बताने वाली हूँ, उनकी क्या मतलब लाइक उनकी क्या स्पेशलिटी हो सकती है, किस तरीके से आप अप्रूव करा सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ इस बारे में कि ब्लॉगिंग वेबसाइट अगर आप बनाते हैं तो कितना आप अर्न कर पाएंगे या फिर किन की जगहों से आप अर्न कर पाएंगे, उस चीज़ के बारे में। सबसे पहले आपका यहाँ पर आता है गूगल एडसेंस, ठीक है। सो बेसिकली अगर गूगल एडसेंस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल एडसेंस सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को गूगल एड्स अप्रूव करा सकते हैं। वहाँ पर आपके एड्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और जब आपके जो यूज़र्स होते हैं वो बिल्कुल आपके ब्लॉग्स को प्रॉपरली पढ़ते हैं, नीचे तक जाते हैं या फिर किसी ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो वहाँ से आपकी अर्निंग होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जो है गूगल एडसेंस के ऊपर अपना वर्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है media.net जो बेसिकली याहू और बिंग एड्स के लिए इस्तेमाल करी जाती है। तो आप चाहो तो इसके लिए भी अपनी वेबसाइट को लाइक एलिजिबल बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास इजोइक, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो जहाँ पर आप अपने एड्स को अप्रूव करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एड थ्राइव आता है, मीडिया वाइन आता है, इन्फो लिंक्स आता है, प्रोपेलर एड्स आता है, शी मीडिया आता है, मोन्यूमेट्रिक आता है एंड रेफ कंटेंट आता है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक होने की वजह से जब आपकी वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट्स, यूज़र्स, कस्टमर्स आपके ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं या आपके एड्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं या आपकी वेबसाइट के ऊपर आकर, तो ये वेबसाइट सारी आपको पैसे देती हैं, ठीक है। सो अब इन सब का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। मे बी गूगल एड्स में आप 1K ट्रैफिक भी लेकर आते हैं तो आपको इतना पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो पे किया जाता है। या फिर अगर आप इजोइक की बात करें तो मे बी इजोइक जो है वो आपको गूगल एडसेंस से डबल पैसे भी दे सकता है, लेकिन उसका अपना क्राइटेरिया है कि इतने से इतना ट्रैफिक होना चाहिए। मतलब लाइक अगर आपके पास 1000 पे ट्रैफिक है तब भी आपको गूगल से डबल ही आपको पैसे मिलेंगे। मीडिया वाइन का थोड़ा डिफरेंट है, उसका ट्रैफिक मे बी 50K प्लस होना चाहिए तब आपको पे होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ का अपना अपना क्राइटेरिया है। इफ़ यू वांट टू बी नो दैट कि हर एक प्लेटफॉर्म को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करा जा सकता है, किस तरीके से अप्रूव करा जा सकता है या फिर उनके अप्रूव कराने का क्या क्या क्राइटेरिया है और एलिजिबिलिटी है, तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके लिए भी एक पर्टिकुलर क्लास को जनरेट कर दूंगी। ओके, सो आई होप कि जो क्लास था वो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस क्लास के अंदर मैंने पूरी वो सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करी है कि आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के थ्रू किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट में बेसिकली ऑब्वियसली बात है आप एड्स के थ्रू ही अर्न कर रहे होते हो। एफिलिएट की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर आप मतलब डिफरेंटली प्रोडक्ट्स का जो कमीशन होता है वहाँ से भी आप अर्न कर सकते हैं।
लेकिन कहाँ पे जाकर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरीके से किन किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर बना सकते हैं, कैसे आप अपनी नीश फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर सकते हैं, उनके हिसाब से आप अपने ब्लॉग्स को लिख सकते हैं और उसको एडसन अप्रूव भी करा सकते हैं। ये मैंने कुछ आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के नाम बताए, उनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से अप्रूव्ड हो जाएंगे तो अब मे बी आप अपने फ्यूचर में काफ़ी अच्छा अर्न कर पाएंगे। सो आई होप ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास टू द वेरी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।